Hello everyone, a very happy and prosperous Diwali to all of you. So, as we all know that your UGC NET exam is not so far and we just have 2.5 months. So I decided if you're someone who hasn't prepared anything for this exam, for the UGC NET exam of December 2025, then don't worry. Today I'll give you some tools and techniques and I'll tell you about some strategies which will help you to crack this exam just this time period. And trust me, you can do this with a good discipline and with a good time management. You are able to crack the UGC NET exam within these time. Okay, so nothing to worry about, and I hope this video will help you to understand and get a very good understanding of the paper 1 and paper 2, and will help you qualify the UGC NET exam. So इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो कि आपने कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी थी, यू नो कि कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, यू आर अवेयर कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। सो आप अब जो 2-2.5 महीने का टाइम है इसमें ऑब्वियसली यू विल फोकस ऑन रिविजन, राइट। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। बट इफ़ यू आर समवन ऑन द अदर हैंड जिसने जस्ट अभी डिसाइड करा है एंड आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, नाउ इज़ द टाइम दैट यू डिसाइडेड कि ठीक है आप यूजी नेट एग्जाम देंगे, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू बिकॉज आई विल टेल यू कि आप कैसे, अब बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है ना, यू हैव टू मूव विथ स्ट्रैटेजी एंड अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट। सो आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू ऑल एंड आई विल हेल्प यू विथ समथिंग विच मोस्ट ऑफ यू वोंट टेल. So if you're watching this video, I am somewhere sure that you are an aspirant of UGC NET exam. And what I'm going to share is truly going to change your preparation because ज़्यादातर I know students, they know the syllabus, but what they struggle with is good strategies and guidance. And for that, I have something very special to share with you. So physics वाला लेके आए हैं अपने 3 powerful batches जो कि आपकी confusion को confidence में बदल देंगे. And these batches are at very affordable price right now because उनका अभी दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है. सो फॉर कॉम्पिटिटिव एंड टफ एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है, अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है. एंड विद दिस यू हैव फिजिक्स वाला जहाँ पे आपको फैकल्टीज मिलती हैं लाइक निशान सर, गुलशन मैम, सौरभपुरी सर, चांदनी मैम एंड मैनी मोर. With paper 1, they have subjects like commerce, computer, economics, history, political, English and Hindi literature, geography, sociology, and law. And then they have 3 batches like Mission JRF Foundation batch for June 2026, that is just for 5,499 rupees. Then they have JRF crash course for December 2025, that is just for 2,499 rupees. Now this is literally a steal deal. Then they have Mission JRF Pro December 2025 batch, which is just for 5,799. You can get all these now in such huge discounts. So you can download their app, you can go to their website, and मैं इसका link description में mention कर दूँगी. Make sure to check it out. And you can also use my coupon code PN500 to get up to 500 rupees off. It's the perfect time for you to step forward in your UGC NET JRF exam journey. So enroll now and let this festive season bring more success, clarity, and confidence to your UGC NET journey. And I hope that this batches will be helpful to you. Okay, so coming back to the video, first is what you can do is first go and check your 5-year PYQs. ठीक है, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, मेक श्योर यू गो थ्रू देम. ठीक है, नाउ अपना टाइम सेल कर लो दैट यू हैव कितने डेज, 50 डेज लगा लो, चलो ठीक है, या 40 डेज, 40 से 50 डेज लगा लो. इसमें से 5 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ PYQs देखना है. PYQs देखो लास्ट 5 साल के, 10 साल के भी देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 साल के देखो एंड एनालाइज कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. एनालाइज कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, किस टाइप के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं. ओनली एनालाइज दिस एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ठीक है, 5 साल के पेपर जो भी पढ़ रहे हो जस्ट अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ओके, बस एक बार पढ़ो, देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है. बस 5 साल आपको एनालाइज करना है. ठीक है, 5 पेपर्स पढ़ के मतलब आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि आपको क्या चीज़ें आ सकती है, क्या नहीं आ रही हैं, पेपर कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट से. ठीक है, तो पेपर 1 का भी अपना पेपर देखना है, पेपर 2 का भी अपना पेपर देखना है लास्ट 5 साल का. ठीक है, और 5 दिन के अंदर ही करना है. नाउ फॉर द नेक्स्ट 20 डेज 10 दिन डिवोट करो पेपर 1 को, 10 दिन डिवोट करो पेपर 2 को. ठीक है, नाउ इन पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोगों को टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है. आई एम नॉट सेइंग कि 10 दिन आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, नहीं, 10 दिन केवल पेपर 1 नहीं पढ़ना है और 10 दिन केवल पेपर 2 नहीं पढ़ना है. आपको उन 10 दिन, पहले वाले 10 दिन पेपर 1 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और ज़्यादा टाइम देना है. लाइक फॉर
एग्जाम्पल 5 घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 3 घंटे आप पेपर 1 पढ़ेंगे और 2 घंटे पेपर 2 पढ़ेंगे, और अगले वाले 10 दिन आप पेपर 2 3 घंटे पढ़ेंगे और पेपर 3 घंटे पढ़ेंगे, और पेपर 2 आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे पेपर 2 को, ठीक है, पेपर 1 आप 2 घंटे पढ़ेंगे, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। फर्स्ट दिन जब पहले के 10 दिन है ना, आपको उसमें सिर्फ ये करना है, पेपर 1 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, पेपर 1 को पढ़ना है, आपको पूरे उस 10 दिन में 10 यूनिट कंप्लीट करनी है, विच मीन्स आपको एक दिन में 10 यूनिट पढ़नी है। आई नो दिस साउंड्स थोड़ा सा इलॉजिकल, बट लास्ट टाइम में यही किया जा सकता है, ठीक है। सो आप जितना आप कर पा रहे हैं उस 10 दिन में उतना करो, ओके, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ो। अगले वाले 10 दिन आपको क्या करना है, आपने जितना भी पढ़ा है सबको आपको रिवाइज करना है, मेक श्योर दैट यू रिवाइज वेल। तो इसमें आपका 1 महीना चले जाएगा, तो बेसिकली 1 महीने में आपको जिस समझ में आ जाएगा कि ये आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी जो आपको लगता है कि ओके ये आ सकता है। आपके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अब नहीं पढ़ना है, जो आपको पता है कि एग्जाम में आता है आपको केवल वो ही पढ़ना है। सो डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स, कि अरे ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, अभी नहीं, इस टाइम में नहीं। उसके बाद जो अगले 10 दिन है आपको केवल रिवाइज करना है, आपने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, जो आपको लगी कि ठीक थी, ठीक है, और आपने जितना भी 10 दिन में और वो अपने 20-25 दिन में आपने जितना भी सब कुछ करा है, आपको सबको रिवाइज करना है अगले 10 दिन में। ये सब कुछ करते करते आपका 1 महीना चला जाएगा, ओके। इसका मतलब ये है कि जो 1 महीने का टाइम ही आपके पास है सब कुछ पढ़ने को और सीखने को, ठीक है। एंड दिस इज़ इनफ, ट्रस्ट में, अगर आपको पता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है, तो 1 महीना काफ़ी इनफ है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको 1 महीने केवल पढ़ना है। अब जो उसके अगला टाइम आ रहा है, लाइक 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे, जितने भी दिन बचे, आपको इसमें मैराथन लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, 2 चीज़ें करनी है, मैराथन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सब पढ़े हैं उससे क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट से ऐसा नहीं आता ना कि जैसे आपने पढ़ा है वैसे क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। एंड टू गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट यू मस्ट गिव मॉक टेस्ट एंड मस्ट अटेम्प्ट द मैराथन्स। नाउ आपको ये पेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, नाउ आपको ये फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, और ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स जो हैं लास्ट मैराथन्स करवाते हैं। मेक श्योर दैट यू डू पार्टिसिपेट, जितना पार्टिसिपेट कर सको उतना पार्टिसिपेट करो, मैराथन्स में जाओ, मतलब मैराथन्स में ऑफलाइन अगर आपके पास कोई सेंटर है तो करो, वरना ऑनलाइन मैराथन्स लगाओ, सी के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। इवन उस टाइम पे भी आपको समझ में आएगा कि ये मे भी ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, मे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उसकी क्लैरिटी भी आएगी। वो ऐसा नहीं है कि आपने जो पिछले पढ़ा है वही सारा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आप मिस करेंगे करेंगे, बट मैराथन के टाइम पे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बिकॉज यू नो इंस्टीट्यूशंस नो, सब लोगों को जो भी इतने सालों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, दे नो कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आते, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नए नए क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, इस यूनिट से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस, ओके। सो आप लोगों को उन पे ट्रस्ट करना है, आपको मैराथन्स और मॉक टेस्ट लगाना है। आई कैन टेल यू इनफ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे आई नो मैराथन्स और मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प करी थी, बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, बट जब तक मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी। सो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ये एक अलग ही चीज़ है, हैविंग नॉलेज इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाना इन द क्वेश्चन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड फॉर दैट मॉक टेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए लास्ट का टाइम केवल जो 10 से 15 दिन है आप लोगों के मैराथन और मॉक टेस्ट पे लगाने हैं, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड इन योर प्रिपरेशन। तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से और एक डेडिकेटेड टाइम दें, एंड दैट्स इट। इसी में आपका एक्चुअली मतलब लास्ट तक का जो टाइम है ना, उसमें आपको केवल मैराथन और मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, या फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप चाहते हो कि मतलब अब इसमें कुछ रह गया है टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो आप इस टाइम पीरियड में कर लेना इसको। बिल्कुल आप लास्ट के 5 दिन आपको लगता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मिस कर दिया है, तो उसमें वो कर लो। इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, इन टाइम में, और ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, इतना भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इतने में आपका अगर इफ़ यू हैव गुड कॉमन सेंस, इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस, यू नीड अ गुड क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये आपको चाहिए। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जब आपको ये पता होगा कि क्या नहीं पढ़ना है, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और आप इन ये कुछ 40-50 डेज़ में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एंड पेपर 1 को प्रायोरिटी देना, फिर पेपर 2 को प्रायोरिटी देना, उसके बाद मॉक टेस्ट एंड मैराथन्स, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और मैं कितना कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। कुछ अगर मिसिंग है तो लास्ट के 5 दिन में या बीच में जाके कवर कर लो,
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खींचोगे तो ये कर सकते हो लास्ट के 15 दिन में कि 3 घंटे मॉक टेस्ट मैराथन को दे रहे हो, उनकी क्वेश्चन में दे रहे हो, बाकी 2 घंटे आप पेपर 1 पढ़ो या पेपर 2 पढ़ो, जो भी आपको प्रायोरिटी में लग रहा है, जो भी आपको लगता है कुछ मिसिंग रह गया है, जो भी आपको लग रहा है कि मैं ओहो ये तो मेरे से मिस हो गया, ये मुझे और करना है, ठीक है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। सो या आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। एंड अभी दिवाली का टाइम है, 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, दिवाली इन्जॉय करो, उसके बाद पढ़ाई के लिए शुरू हो जाओ, ठीक है, वी हैव वेरी लेस टाइम बट इट इज़ इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर एज वेल। सो power to you and I hope that you qualify this UGC net exam December 2025 if you're disciplined, if you have a good time management skill, ठीक है, and if you're determined to qualify this exam you can easily, very easily qualify this exam, ठीक है, so no need to worry, with good strategies and technique you will be able to do so. And if you have any other requests regarding the same about the December 2025 exam of UGC net, I will definitely make a video. Make sure that you comment down your queries so that I can make sure that my next video is appear. So yeah, that's it for today's video, and very happy Diwali to you and your family. I'll see you in my next video. Till then, tata, bye bye. Take care, everyone.